तो चलिए we'll continue our topic of transistor modes and the second configuration that we're going to study will be the common emitter mode. ठीक है, तो common emitter mode में सबसे पहली चीज जो आप याद रखेंगे that common emitter mode जो है it is the most widely used mode. उसकी वजह क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाऊंगा तब समझ आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले we'll have a transistor. This is a transistor. This is an NPN transistor because the arrowhead is directed away. ठीक है, तो it will be NPN जिस पे arrow है that is the emitter. This will be the base and then we have the collector. ठीक है, और हमने यहाँ देखा तो इनपुट वाला साइड जो होगा इट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड बिकॉज एक्टिव स्टेट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आउटपुट वाला साइड होगा दैट विल बी रिवर्स बायस्ड. और अगर आप देखें तो कॉमन एमिटर मोड में जो आपका इनपुट वाला साइड है दैट हैज टू बी द बेस एमिटर साइड, बेस एमिटर साइड. ठीक है, एंड बिकॉज दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VBE इज कनेक्टेड विद द p टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, एंड देयरफॉर बेस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, देयरफॉर दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है, और अगर आप देखिए यहां वाले साइड से N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कलेक्टर है उसके साथ लेकिन हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया तो दिस इज रिवर्स बायस्ड. देयरफॉर in case of common emitter mode the input voltage शाबाश input voltage is VBE. ठीक है, and what about the input current it is shabash input current is the current which is being fed into the transistor through the base obviously बात है, and the direction of that current will be IB. ठीक है ना, this is the input current IB. ठीक है, और अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें आउटपुट वोल्टेज शाबाश इट इज द VCE. ठीक है, बराबर कल की तरह ही. ठीक है, और अगर हम आउटपुट करंट की बात करें then output current is this and this is obviously the collector current. Its direction will be this IC. So this is output current is the collector current. Fine. Now अगर हम एमिटर करंट को देखना चाहें, एमिटर की डायरेक्शन, एमिटर कलेक्टर की डायरेक्शन, then we have a relationship that if you remember this relationship that okay I've write it here, IE emitter current it is always equal to शाबाश बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. ठीक है, ठीक है कि नहीं. तो अगर बेस और कलेक्टर करंट they are going into the transistor, collector current into the transistor, base current into the transistor, therefore emitter current must be, because this has to be according to the Kirchhoff's current law and therefore this will be the direction of the emitter current. ठीक है ना, because negative terminals की तरफ करंट होती है तो वहां से भी आप समझ सकते हैं करंट it has to be from this to the negative terminals of the battery. ठीक है, okay, and the relation is again valid. This is again by Kirchhoff's current law KCL. हमने जो पढ़ा है that KCL के एतबार से emitter current is always base current plus collector current. ठीक, now in order to understand the concept of the common emitter mode हमने common base mode को इस्तेमाल करना है, और हमने कल एक रिलेशनशिप पढ़ी थी in case of common base mode that the collector current it is equal to alpha times IE plus we had this current ICBO. if you remember this relationship हमने कल ये रिलेशनशिप पढ़ी थी in common base mode. मैंने कहा था जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट कल आउटपुट करंट थी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कलेक्टर करंट कल आउटपुट करंट. और अगर यहां पे देखें एमिटर IE दिस वाज द इनपुट करंट, और यहां पे देखें व्हाट वाज दिस करंट, दिस वाज द करंट through collector and base when the input side was open, when the emitter was open. अगर आपको याद होगा मैं अभी दिखाऊंगा, and this current was called as reverse saturation current or you call these currents as leakage currents. पढ़ा हमने कल, जिसको हमने बोला it is of the order of microamperes. हमने बोला ये करंट जो it is of the order of milliamperes. ठीक है कि नहीं. और अगर मैं आप कल की डायग्राम दिखाने की कोशिश कर दूं तो वो कुछ ऐसे थी ना, हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, दिस इज एन एमिटर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर. ठीक है, हमने कल कुछ ऐसे किया था. मैंने आपको कहा जो आपका ये वाला साइड है दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर अगेन एन NPN ट्रांजिस्टर, N दिस इज P एंड दिस इज N. तो आउटपुट मस्ट बी रिवर्स बायस्ड होने का मतलब यू हैव टू कनेक्ट अ बैटरी से हियर लाइक दिस. ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने कहा देयर हैज टू बी सम लीकेज करंट्स ऐसे फ्लो करेगी which was called as ICBO. कल हमने ICO ही देखा था,
लेकिन आज मैं B इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज दैट करंट वाज फ्लोइंग थ्रू कलेक्टर एंड बेस व्हेन योर इनपुट साइड वाज ओपन, दैट इज एमिटर करंट आपकी कितनी थी? 0। ठीक है, तो जो करंट तब होगी दैट इज द लीकेज करंट। ठीक, अब इसी एनालॉजी को अगर मैं इस्तेमाल करूं इन कॉमन एमिटर मोड, यहां पे रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली गाइडलाइन बिटवीन शाबाश द आउटपुट करंट, that is collector current, output current, and according to this relationship it says that collector current is actually the function of input current which is the emitter current। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? अगर मैं इसी चीज को in case of common emitter mode में इस्तेमाल करूं then मुझे भी या इसमें भी कुछ ऐसी रिलेशनशिप आनी चाहिए, और उस रिलेशनशिप की बात अगर करें तो इट हैज टू बी समवट लाइक दिस। आपका आउटपुट करंट हैज टू बी द फंक्शन ऑफ द इनपुट करंट, और अगर आपका आउटपुट करंट की मैं बात करूं, व्हाट इज द आउटपुट करंट? ओके, इट इज द कलेक्टर करंट, देन द कलेक्टर करंट शुड बी द फंक्शन ऑफ शाबाश, यहां पर इनपुट करंट एमिटर करंट थी, और इस वाले केस में इनपुट करंट क्या है? बेस करंट। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप आना चाहिए। नाउ इन ऑर्डर टू डिराइव दिस रिलेशनशिप व्हाट वी विल डू, वी विल बी यूजिंग दिस रिलेशनशिप एंड दिस रिलेशनशिप टुगेदर। ठीक है, कैसे मैं दिखाता हूं। यहां देखिए, इफ वी ऑलरेडी नो कॉमन एमिटर मोड हो, कॉमन बेस मोड हो, कोई भी मोड हो, एमिटर करंट इज ऑलवेज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, कॉल दिस फर्स्ट। ठीक है, देन वी हैव दिस रिलेशनशिप जो हमने कल डिराइव की थी, दैट कलेक्टर करंट इज अल्फा IE प्लस I CBO। ठीक है, लीकेज करंट, सॉरी इनपुट करंट्स, कॉल दिस रिलेशनशिप द सेकंड रिलेशनशिप। नाउ इफ यू आर यूजिंग द फर्स्ट रिलेशनशिप हियर, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दैट IC विल बी इक्वल टू शाबाश अल्फा, IE के बदले मैं लिख सकता हूं IB प्लस IC, IB प्लस IC, ठीक है, प्लस शाबाश ICBO, फाइन, which implies, can I say IC it is equal to alpha IB plus alpha IC plus ICBO। ठीक है, ओके, इसके बाद अगर आगे चले तो which implies I can say IC यहां पे है, alpha IC यहां पे, जब ये वहां चला जाएगा तो IC यहां पे कॉमन आएगा और यहां आएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये जब वहां चला जाएगा that will be equal to alpha IB plus ICBO। ठीक है, which implies IC is equal to shabash, it will be alpha by 1 minus alpha IB plus ICBO divided by 1 minus alpha। ठीक है, now this is the relationship between shabash the collector current, output current and the base current IB। therefore जिस तरह से यहां पे कलेक्टर और इसके बीच में वैल्यू था अल्फा, हमने बोला, मैं यहां पर इसके बदले अल्फा बाय लेट आई कैन से लेट अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बी से इक्वल टू बीटा। ठीक है, फिर हम देखते हैं बीटा है क्या, लेकिन मैं बोल रहा हूं लेट अस सपोज दैट अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इज बीटा, व्हिच इंप्लाइज आई कैन से दैट if you add 1 on both sides it will be alpha by 1 minus alpha plus 1 will be equal to beta plus 1, fine, and therefore we can say that yahan pe LCM 1 minus alpha hi aayega, it will be alpha plus 1 minus alpha will be equal to beta plus 1। ठीक है, ये minus alpha और ये alpha चला गया, therefore we'll have शाबाश हमारे पास ये आएगा which implies beta plus 1 will be equal to 1 by 1 minus alpha। ठीक है ना, therefore you can use this A part and this the second part here in this relationship। जब इसको यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रिलेशन जो, say for example this is the third equation, if you are using A and B in third, what you will get? Shabash, you will get this relationship IC, the current collector current, it is equal to beta times IB, beta times IB, beta times IB plus beta plus 1 times ICBO। समझना मेरी बात, ICBO डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा था और हमने यहां इस रिलेशनशिप से देखा 1 by 1 minus alpha is beta plus 1, therefore I can replace that 1 by 1 minus alpha with this। ठीक है, therefore you are having this relationship that current, collector current is beta times IB plus something ICBO। What was ICBO? It was the leakage current in case of common base mode।
ठीक है ना। और यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे इस रिलेशनशिप में देखिए, IC was some फैक्टर टाइम्स इनपुट करंट प्लस लीकेज करंट। अगर मैं वही एनालॉजी यहां पे इस्तेमाल करूं तो आप यहां पे देख रहे हैं कि आपका आ रहा है कलेक्टर करंट, ठीक, प्लस इज अ फंक्शन ऑफ सम फैक्टर टाइम्स इनपुट करंट प्लस दिस हैज टू बी, दिस पार्ट, दिस हैज टू बी लीकेज करंट, ठीक है। नाउ दिस लीकेज करंट, ये कहां से आपको समझ आएगी, ये देख लीजिए, लीकेज करंट, दिस विल बी द, वी कैन कॉल दिस एज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट, एंड ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इन केस ऑफ कॉमन बेस मोड इट वाज फ्लोइंग थ्रू कलेक्टर एंड बेस, अभी हमने देखा था। लेकिन यहां पे कहां से फ्लो कर रही है वो हम देखना चाहेंगे। आप देख लीजिए, अगर मैं कॉमन एमिटर मोड को यहां पे अलग से बना दूं, ट्रांजिस्टर को, सिर्फ ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये आपका एमिटर है, ठीक है। तो आपका इनपुट साइड तो ये है, इनपुट साइड तो ये है, ठीक है। इनपुट साइड, आपको इनपुट साइड ओपन करना है ना, दिस इज द एमिटर, दिस इज द कलेक्टर एंड दिस इज द बेस, यानी कि आपने बेस एमिटर को ओपन कर दिया, ठीक। लेकिन आपको कलेक्टर और एमिटर के बीच, क्योंकि कलेक्टर और एमिटर के बीच, शाबाश, वहां से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना है। जब आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कलेक्टर इज एन टाइप, देयरफॉर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक, तो ऐसे आएगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। अब आपकी करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगी, क्योंकि ये वाला ओपन है, बेस में से जो करंट आएगी वो तो फ्लो होगी नहीं, देयरफॉर जो आपकी करंट आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी रिवर्स डायरेक्शन में, आएगी ऐसे, ऐसे आएगी, एंड दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू कलेक्टर and emitter when the third terminal, that is the base, is open. Therefore you will call this current as current through collector emitter, and when the third terminal is open, therefore it will be ICEO, ठीक है। Therefore I can replace this equation जो यहां पे आ गई है as, which implies I can say that IC is equal to beta times IB plus, ये जो है ये पूरा, this overall उस analogy से this has to be the leakage current, and the leakage current here is ICEO, क्लियर हो गया, ठीक है कि नहीं। Therefore यहां पर आपका आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है कि नहीं। ओके, नाउ इफ यू एनालाइज द इक्वेशंस अगेन, यू विल सी दैट the leakage currents in case of common emitter mode and the leakage currents in case of common base mode, they are related. They are related as, मैं दिखा रहा हूं, they are related as this. इन दो इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए, देन आई कैन से दैट द लीकेज करंट इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड इट इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 टाइम्स, शाबाश, ICBO, the leakage current in case of common base mode. Therefore, you are seeing that ICEO is more than ICBO, ठीक है, यानी कि leakage currents are very much significant in case of common emitter mode. Clear? Now, when you look at this expression, यहां पे आपको समझ आ जाएगा। Now, अगर मैं इन लीकेज करंट्स को इनपुट करंट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, लीकेज करंट्स को इनपुट करंट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, देन आई कैन से दैट ये वाला जो है, इस इक्वेशन से हमें ये समझ आ सकता है, आई कैन से दैट IC which is equal to beta IB plus beta plus 1 times, or I can simply say this is ICEO. I can, if you are comparing these two, then I can say that beta IB जो है it is very much large as compared to ICEO, ठीक है, because these are the leakage currents, ठीक है। Therefore I can say that I can neglect this term and I can say that IC जो है it is equal to beta times IB, ठीक है, beta times IB, which implies which we can say that beta जो है it will be equal to IC divided by IB, ठीक है। Now if you see what is IC, अभी हमने देखा IC was the output current, so this is the output current, IO divided by, what is IB, obviously it is the input current, तो अगर ये input current है, then the ratio of the output to input current, हमने common base mode में पढ़ा, the ratio of the output to input current, that was called as current gain, and we represented that by alpha. Therefore when we are seeing that collector current by base current, with the ratio will be called as, will be represented by beta, no problem, but remember this beta will be called as the current gain.
and we are seeing that in case of common emitter mode, current gain, the value of the typical values of beta range between 50 to 400. Therefore, your output currents are around 50 to 400 times larger than the input current. ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं that common emitter mode can be used as a current amplifier. ठीक है, because it amplifies your current. As in case of common base mode हमने देखा, वो हमने करंट बफर के लिए इस्तेमाल किया गया था. ठीक है, क्योंकि वहां पर अल्फा जो था नियरली 1 था, 1 से ज्यादा नहीं था, 9.98 0.95 था. लेकिन यहां पे हम समझ रहे हैं जो आपका करंट गेन है वो कितना है, करीब करीब 50 to 400. Therefore we can say that. अब है क्यों, वो आप देख सकते हैं. बेस करंट और कलेक्टर करंट के एतबार से कलेक्टर करंट करीब करीब 95% ऑफ द एमिटर करंट होती है और बेस करंट 5% ओनली होती है. Therefore ये रेशियो इसीलिए बहुत ज्यादा आ जाता है, and therefore we can say that output currents are very large as compared to the input current, जिसकी वजह से आपका current gain बहुत ज्यादा आ जाता है, and therefore you can use this common emitter mode as a current amplifier. Otherwise transistors in general they are used as voltage amplifiers, लेकिन common emitter mode we can use this as current amplifier. Clear है? ठीक है? Okay. इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो I have to go with the input and the output characteristics of course, but I would like you to remember this relationship. Now this relationship is very important in common emitter mode. ठीक है, this relationship is very important in common emitter mode because this relationship will let us know how do the input and the output characteristics vary in case of the common emitter mode. Clear? Okay, I'll go with the common input characteristics of the common emitter mode. Now, if I talk about the input characteristics of this common emitter mode, then obviously बात हमने कल input characteristic का definition देखा था. It is obviously the IV characteristics of the input side when the output voltage is kept constant. ठीक है? It is the शाबाश IV characteristic of input side. ठीक है ना? When output voltage is constant. ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें then we have to plot a graph between the input current, obviously that is the base current and the input voltage, that is VBE. ठीक है, obviously बात this will be in volts and this base current. Now base current अगर आपको याद होगा, base currents बहुत कम होती है. ठीक है, these currents are of the order of microamperes. Therefore the graph will be between base current in microampere and voltage in volts. Fine. Now common emitter mode में again वही concept है. आपके पास दो diodes है, input side always in active state, input side must be forward biased, output side must be reverse biased. So therefore I can say that जब मैं input characteristic की बात करूं, when I am keeping the output voltage constant, that is VCE is constant. Say for example I am talking about VCE equal to say 15 volts. जब VCE आपका कितना है 15 वोल्ट. ठीक है, तो तब क्या होने वाला है, now the input diode will be forward biased and forward biased condition में आपको पता है वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाएगा. therefore the graph will be somewhat like this, ऐसे हो ना. and जो यहाँ पर अचानक से करंट इंक्रीज होने वाला होगा that will be around at 0.7 volts, say because we are talking about a silicon semiconductor. ठीक है, this voltage will be called as the knee voltage, वो हमने पढ़ा है. तो IV characteristic input side is nothing but the forward biasing characteristics of the PN junction. क्योंकि forward biased, क्योंकि जो diode input side पे है, that diode is forward biased. ठीक है, forward biased because positive terminal is connected with the base and the negative terminal is connected with the emitter, because base P type था और emitter N type था. Clear है कि नहीं? Therefore we are seeing that the input characteristics will be same as that of the forward biased PN junction. Clear? Now okay, this is very easy, हमने पिछले common base mode में ऐसे ही देखा. लेकिन इसके बाद we have to see the effect of this VCE, the output voltage. When the output voltage changes, what will be the effect of this on the input characteristics? ठीक है, तो उसके लिए हमने common base mode में एक effect पढ़ा था which was called as the early effect. ठीक है, अब early effect यहां पे कैसे इस्तेमाल होगा ये आप देख लीजिए. Now early effect की बात करूं तो early effect कुछ ऐसा है ना,
आपके पास एमिटर है, आपके पास बेस है और आपके पास कलेक्टर है, ठीक। और हमने पढ़ा था कि अगर आप VBC को रिवर्स बायस करेंगे, दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर, NPN के एतबार से दिस हैज टू बी नेगेटिव, दिस हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। और जब आप ये करने वाले हैं, दिस विल बी VCB, ठीक है, VCB। और अगर आप इस वोल्टेज को VCB को रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने जा रहे हैं, देन द डिप्लीशन लेयर जो यहां पे बन रही थी वो पुराना ही हमने पढ़ा है, डिप्लीशन लेयर जो बेस और कलेक्टर के दरमियान बन रही थी, उस डिप्लीशन लेयर का विड्थ इंक्रीज होगा। डिप्लीशन लेयर का विड्थ जब इंक्रीज होगा, हमने देखा कि उसका इंक्रीज ऑन द बेस साइड विल बी मोर एंड ऑन द कलेक्टर साइड विल नॉट बी दैट मच बिकॉज बेस इज लीस्ट डोप्ड। और अगर डोपिंग के एतबार से इसकी डोपिंग लेवल बहुत कम है तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इनसाइड द बेस विल बी मोर, यानी कि बेस के साइड से आपका डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रहा है, कलेक्टर के साइड से भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं है जितना बेस के साइड, वो तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अगर हम मान लें कि ये टोटल विड्थ W था, WB था ऑफ द बेस, ठीक है, मेटलर्जिकल विड्थ जिसको हम कहते हैं, देन द डिप्लीशन विड्थ लेट दैट बी W, ठीक है, एंड वी आर हैविंग दैट स्पेस इनसाइड द बेस व्हिच इज स्टिल अवेलेबल, जिसमें डिप्लीशन अभी चार्ज कैरियर्स का नहीं हुआ है, एंड दैट लेयर say that the width of that layer is W dash. Then as per the relationship that WB total width will be equal to shabash W plus W dash. WB is the total width, the metallurgical width, ठीक, W it is the width of the depletion layer, ठीक है, inside the base, and W dash it is the available width, जिस width में अभी recombination का process जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, तो मैं यहां कह सकता हूं which implies I can say that W dash the effective width of the base it is equal to WB minus W, ठीक है। Now ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, रिपीट कर रहा हूं मैं, जब आप VCB को इंक्रीज करेंगे, VCB को जब आप इंक्रीज करेंगे, शाबाश, तो आपका डिप्लीशन वेट जो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि आपका W जो है वो इंक्रीज होगा। जब आपका W इंक्रीज होगा तो आपका W डैश ऑब्वियसली W डैश आपका कम होगा। जब W डैश कम होगा, हम पढ़ चुके हैं, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इनसाइड द बेस गेट्स लोअर। जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे थे फ्रॉम एमिटर इनटू द कलेक्टर, वो इलेक्ट्रॉन्स अब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स अब बेस के होल्स को रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे, एंड जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली क्षमता रखते हैं कलेक्टर में पहुंचने का, ठीक है। Therefore I can say that कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन्स पहले आने वाले थे। Why? Because W dash is decreasing, ठीक है। जितना ये कम होगा उतना ज्यादा कलेक्टर करंट हमारी बढ़ जाएगी, कलेक्टर करंट हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कल एक और बात भी कही थी, मैंने कहा था कि जो आपका बेस में W डैश है वो तो ऑब्वियसली कम हो रहा है, जब W डैश कम हो जाएगा तो आपका जो ग्रेडियंट है चार्ज कैरियर्स का, वो ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ग्रेडियंट को डिफाइन करें तो इट इज कंसंट्रेशन पर यूनिट विड्थ, अब बिकॉज द कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट विड्थ W डैश, ठीक है। अब आपका W डैश जो है वो क्या हो रहा है, कम। जब W डैश कम हो रहा है, जो आपका ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा तो आप मानते हैं दैट मोर इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम एमिटर टुवर्ड्स द बेस एंड द कलेक्टर, जिसकी वजह से आप ये भी कह रहे थे कल कि आपकी एमिटर करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये तो था VCB की वजह से ये हाल हो रहा है, मैं कह रहा हूं VCB बढ़ाने से W इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है। डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करने की वजह से इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से कलेक्टर करंट और एमिटर करंट बढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो बेस करंट है उसको क्या हो रहा होगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, बेस करंट जो है वो हो रही होगी डिक्रीज, ठीक है कि नहीं। बेस करंट जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। क्यों हो रही होगी डिक्रीज? शाबाश, क्योंकि अब रिकॉम्बिनेशन उतना नहीं हो रहा है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर द करंट्स ऑफ द बेस आर डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट कलेक्टर करंट, एमिटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और आई कैन से दैट ये जो है उधर ही रहा, therefore I can, in comparison to emitter and collector, I can say
वो कम हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए कि आपका एमिटर में से जो इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे वो डायरेक्टली कलेक्टर में आ रहे हैं, तो बेस में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, जिसके नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स बेस की रिकॉम्बिनेशन कर रहे थे वो तो बेस करंट को कंस्टिट्यूट कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो रहे हैं देयरफॉर बेस करंट जो है वो कम हो रही है। क्लियर? नाउ बेस करंट आपकी कम होगी। नाउ ये तो इफेक्ट है जब हमने VCB को इंक्रीज किया, ठीक। लेकिन हमें इस ग्राफ में देखना है कि इफ यू आर चेंजिंग VCE व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ अगर मैं इस डायग्राम को अच्छे से देखूं तो मैं देख रहा हूं दैट VCE जो है VCE ये VCE आई कैन से दैट VCE जो है इट इज इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर और एमिटर है ये वाला VCE, ठीक है। ये दरअसल बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर VBE और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड कलेक्टर बिटवीन VCB। कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं VCE इट इज इक्वल टू VBE प्लस VCB, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो मुझे एक बात बताओ, जब आप VCE इंक्रीज करोगे VCE के इंक्रीज होने से क्या मैं कह सकता हूं आपका VCB इंक्रीज होगा? कह सकता हूं ना? जब आपका VCE इंक्रीज हो रहा है, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो मैं कह सकता हूं ना VCB भी बढ़ जाएगा। क्यों? फॉर अ गिवन VBE, बिकॉज VBE तो इनपुट में फीड ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आप आउटपुट को बढ़ाएंगे तो वो वोल्टेज कहां से इंक्रीज होगा? वो वोल्टेज VCB में इंक्रीज होगा। VCE तो कांस्टेंट है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड दैट इनपुट, ठीक है ना। देयरफॉर आई कैन से VCE बढ़ाने से आपका VCB बढ़ेगा। जब आपका VCB बढ़ेगा तो आप क्या देख रहे हो? VCB के बढ़ाने से आपकी बेस करंट क्या हो रही है? बेस करंट कम हो रही है, ठीक है कि नहीं? या अगर मैं रिवर्स में चलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका VCE घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो VCB भी घट जाएगा, तो VCB जो है VCB वो भी घट जाएगा। जब आपका VCB घट जाएगा तो उस हिसाब से बेस करंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर आई कैन से बेस करंट बढ़ जाएगी। तो बेस करंट बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर जो हो जाएगी वो हो जाएगी कम। रेजिस्टेंस कम ऑफर होने का मतलब जो IV कैरेक्टरिस्टिक से आपको स्लोप मिल रहा था वो स्लोप जो होगा इंक्रीज, बिकॉज IV कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हमारा रेजिस्टेंस घट रहा है आपका स्लोप इंक्रीज होगा। तो मुझे एक बात बताइए, स्लोप बढ़ाने का मतलब स्टीपनेस ज्यादा होने का मतलब आपकी IB इंक्रीज हो रही है बड़ा स्टीपली। यानी कि अगर ये 15 वोल्ट की बात हो रही थी, ठीक है, 15 वोल्ट पे आपका स्लोप ऐसा आ रहा था कुछ, ठीक। लेकिन अगर आपने VCE को कम किया, कम होने का मतलब 15 वोल्ट तो पहले था, अब मैं से फॉर एग्जांपल इसको 10 वोल्ट कर रहा हूं, तो 10 वोल्ट पे IB इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज जो होगा वो बड़ा शार्प होगा, स्लोप बहुत ज्यादा होगी। तो स्लोप ज्यादा इस वाले साइड से है ना कि इस वाले साइड से, देयरफॉर अर्ली इफेक्ट अगेन, ठीक है ना। आपका ग्राफ जो है बड़ा स्टीपली इंक्रीज होगा टुवर्ड्स द 10 वोल्ट for the output voltage of 10 volt. Therefore remember, in case of common emitter mode, the input characteristic says that if you are increasing the output voltage, then the currents will decrease. If you are increasing the output voltage, then the base currents will decrease, resistance of it will be more, and therefore the slope will be less. इसीलिए इसका slope कम है, इसका slope ज्यादा है। Clear हो गया कि नहीं? Therefore, this is the input characteristic, the effect of the output voltage on your input characteristic. Clear है कि नहीं? Okay. Now last की चीज जो input characteristic में रह रही है, that is the input dynamic resistance. Now when I talk about the input dynamic resistance, now यहां पे याद रखिएगा, it is again the early effect. अर्ली इफेक्ट की वजह से आपकी करंट पहले ही इंक्रीज हो, इसीलिए अर्ली इफेक्ट को कहते हैं, ठीक। ओके, नाउ अगर मैं अब आगे चलूं और आई विल बी डिस्कसिंग द
input dynamic resistance because the resistance it is not an ohmic resistance, it is non-ohmic resistance because continuously slope जो है वो different हो रहा है. Therefore this is an input dynamic resistance. This will be equal to shabash input voltage by input current. Now what is the input voltage? The input voltage is VBE. ठीक है. And or I can say it is the change in the input voltage by the change in the input current. Input current, it is the base current. But keeping the thing that your VCE is constant. ठीक है. And remember जो input resistance आ जाती है in case of common emitter mode, देखिए slope बहुत ज्यादा है, resistance बहुत कम होगी, तो कम होती है. It is nearly of the order of 1 kilo ohm. ठीक है. Typical value of 1 kilo ohm. Clear? This was the input characteristic of the common emitter mode. Now I'll go to the output characteristics. ठीक. Now we talk about the output characteristics of the common emitter mode. Now output की बात करें, मैं again common emitter आपका बना रहा हूँ से this is your common emitter mode. ठीक है. Common emitter mode. ठीक. This is the N, P and N, the emitter, the base and the collector. Fine. Now यहाँ पे हमने देखा कुछ connections ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं. अब आपको पता है यहाँ पे जो आपने वोल्टेज दे दिया था that was VBE और जो यहाँ पे आपने दे दिया था that was VCE. ठीक है. because your emitter was common तो इसको ग्राउंड नहीं किया था. ठीक है ना, ऐसे था ना. Okay. Now if I go to the output characteristics, say for it will be again shabash, it will be the IV characteristic of output side. Keeping, remember कल हमने देखा था, keeping input current constant, ना कि input voltage, input current constant. That is, if you are plotting a graph for the output characteristics, this graph will be between the output current, that is the collector current, ठीक है ना, collector current, and the output voltage, that is VCE, ठीक है, keeping IB constant. IB has to be constant. IB will be constant, ठीक है. We'll have different values of IB. जिन values के लिए we will trying to plot a graph. But the thing is, sir, why aren't we keeping the input voltage, that is the VBE constant? बेटा उसकी वजह अभी हमने देखा, जो हमने ग्राफ अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, that was between IB and VBE. ठीक है ना. तो ग्राफ ऐसा आया था. ठीक. और हमने देखा कि IB depends on VBE. It also depends on when you are changing the output voltage. तो VCE के डिफरेंट वैल्यूज पे, ये 15 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट था, ये से 20 वोल्ट था. ठीक है. तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी IB पे असर डाल रहा है, आपका इनपुट वोल्टेज भी IB पे असर डाल रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम IB को ही कांस्टेंट कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि दो में से एक कांस्टेंट करने की फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि IB फिर भी चेंज होता. देयरफॉर हम IB को ही कांस्टेंट करके हम ये देख लेंगे कि आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे क्या असर पड़ेगा ड्यू टू द इनपुट करंट. एंड यही वजह कल भी थी, आज भी है. क्यों? हमने कल भी कहा that your transistors are called as current control devices. This is the reason. Input current is controlling the output characteristics. ठीक है. Now अगर मैं यहाँ पे इस चीज को समझाने की कोशिश करूं तो हमने आज ही एक रिलेशनशिप पढ़ी, दैट द आउटपुट करंट व्हिच इज द कलेक्टर करंट इट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट करंट एज दिस बीटा टाइम्स शाबाश आई इनपुट इज बेस, है ना, प्लस ICEO. पढ़ा ना हमने. ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग, व्हेन योर IB विल बी जीरो, जब IB जीरो हो तो IC जो है वो कितना होगा, ICEO ही होगा. यानी कि जो आपका कलेक्टर करंट है वो आपके लीकेज करंट्स के बराबर है. एंड लीकेज करंट्स आर कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट्स. क्लियर? यानी कि जो आपका IB जीरो है, आपका IC ऑब्वियसली दिस इज मिली एम्पियर, दिस इज इन वोल्ट्स. ठीक है ना. तो आपका IB जब जीरो है तो आप देख रहे हो कलेक्टर करंट लीकेज करंट के बराबर होते हैं. लेकिन मैंने आपको कहा लीकेज करंट्स इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड सिग्निफिकेंट होते हैं. जब सिग्निफिकेंट होने की वजह से हमने ग्राफ जो देखा वो कुछ ऐसे देखा. ठीक है. दिस इज अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ ऑल्दो दे आर सैचुरेशन करंट्स. ठीक. बट
कंसेप्ट के एतबार से थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पे स्टीपनेस, ग्राफ फ्लैट नहीं है, ग्राफ में थोड़ा सा स्टीपनेस या स्लोप जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक, ओके। इसके बाद अगर हम IB के वैल्यूज को बढ़ाते जाएं, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ द IB, ठीक, तो IB के वैल्यूज, ग्राफ इक्वेशन से आपको समझ आ रहा है, इक्वेशन से आपको समझ आ रहा है, IC जो है इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ IB and ICO, but their leakage currents, they are very small as compared to base, therefore we can say that IC will be nearly equivalent to IB, ठीक है, IB। और हम ये कह सकते हैं कि IC अगर IB के बराबर है, therefore अगर आप IB का कोई भी वैल्यू लें, से फॉर एग्जांपल आपने बेस का कुछ भी वैल्यू लिया, इन केस ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है, क्योंकि बेस करंट्स माइक्रो एम्पियर्स में थी, से आपने 1 माइक्रो एम्पियर लिया, लेकिन यहां से जो करंट आएगी दैट विल बी इन मिली एम्पियर्स, क्योंकि बीटा टाइम्स, क्योंकि ये IC जो है इट इज बीटा टाइम्स IB, एंड बीटा हमने देखा इट इज फ्रॉम 50 to 400, देयरफॉर आपकी करंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, एंड द ग्राफ इज समवट लाइक दिस, ठीक है। अगेन द ग्राफ इज नॉट फ्लैट, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्लोप, एंड अगर आपने इसी तरह से 3 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर पर देखा, आपकी करंट जो है बहुत ज्यादा आएगी, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये वाला रीजन जो है, जब आपका IB क्या है 0, कल की तरह, दिस रीजन इज कॉल्ड एज कट ऑफ रीजन, क्या बोलते हैं इसको, एंड दिस रीजन जिसमें आपका IC प्योरली डिपेंड करता है IB पे, इट डजंट डिपेंड ऑन द VCE, ठीक है। हाँ, स्लोप के एतबार से अभी आपको समझ आएगा कि दरअसल ये VCE पे भी डिपेंड करता है, वो हम अभी समझेंगे, क्योंकि अदरवाइज द ग्राफ शुड हैव बीन फ्लैट, मगर यहाँ पे फ्लैट ग्राफ नहीं आ रहा। नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड एज, शाबाश, हमने कल भी पढ़ा है, इज कॉल्ड एज एक्टिव रीजन, ठीक है, एक्टिव रीजन। लेकिन जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, जिस रीजन में आप देख रहे हो आपकी कलेक्टर करंट शार्पली डिक्रीज हो रही है, हमने कल देखा था, दिस वाज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन, एंड सैचुरेशन रीजन तब आ जाता है जब आपके दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। लेकिन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में याद रखेंगे आप, जब आपका VCE लेस देन 0.6 वोल्ट्स होगा, क्योंकि 0.6 वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कॉज द करंट्स, लेकिन जब आपका करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, रिमेंबर आपका वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम होगा, एंड देयरफॉर यू हैव सैचुरेशन रीजन, जिसमें आपने कहा इट बिहेव्स एज अ स्विच ऑन कंडीशन, क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको ये समझा, दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द कॉमन एमिटर मोड, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, इसलिए ऐसे आएंगे, ठीक। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो स्टीपनेस, ये स्लोप जो है, ये फ्लैट क्यों नहीं है, ये फ्लैट, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्लोप क्यों, ठीक। उसके लिए हम अगेन उसी कंसेप्ट पे चले जाएंगे जो हमने इससे पहले किया था, दैट अगर यहाँ पे वोल्टेज है दैट इज VCB, इसके अक्रॉस इट इज VBE, और यहाँ क्या है VCE। नाउ VCE will be written as, शाबाश, VCB plus VBE, ठीक। मैंने अभी कहा आपको, जब आप VCE को इंक्रीज करेंगे तो आपका VCB भी इंक्रीज होगा, जब आपका VCB इंक्रीज होगा, मैंने कहा अभी जो हमने अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अर्ली इफेक्ट में देखा, हमने देखा कलेक्टर करंट और एमिटर करंट इंक्रीज हो रहे थे, उसके साथ साथ बेस करंट जो है वो डिक्रीज हो रही थी, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो ये डिप्लीशन विड्थ है वो डिक्रीज हो रहा था, डिप्लीशन विड्थ जो है इंक्रीज हो रहा था, और जो आपका इफेक्टिव बेस विड्थ है, क्योंकि बेस विड्थ मॉड्यूलेशन हो रही थी, इफेक्टिव बेस विड्थ जो है वो कम हो रहा था, इफेक्टिव बेस विड्थ कम होने की वजह से आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज, एमिटर करंट इंक्रीज, लेकिन आपका बेस करंट डिक्रीज। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं VCE जो है, आपके VCE के वैल्यूज चेंज होने से आपकी जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। VCE के चेंज होने से आपकी कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है, और उसी अर्ली इफेक्ट की वजह से आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो यहाँ पे है ये फ्लैट नहीं है, इसमें थोड़ा स्टीपनेस है, एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, क्लियर है। दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन एमिटर मोड। नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट थिंग, दैट इज द आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। Output dynamic resistance. Now when you talk about the output dynamic resistance, shabash, it will be the voltage of the output to the current of the output when you are keeping the input current constant, है ना। Therefore it will be output voltage VCE, change in VCE, shabash, divided by shabash output current. Output current is the collector current, change in collector current, ठीक है। Now जब मैं ये चीज इस्तेमाल करूंगा तो रिमेंबर ये हम DC के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब चेंज हम इस्तेमाल करते हैं ये हम AC वैल्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
at input current constant, that is your base current is constant. And remember the value of the output resistance. Now see from the graph. Graph is flat, slope is less. Slope is less होने का मतलब resistance will be more, and resistance ज़्यादा होने का मतलब आपका जो typical value आ जाता है output resistance का, that is of the order of 10 kilo ohms. ठीक है? Now output resistance बहुत ज़्यादा, input resistance बहुत कम. तो अगर हम यहाँ पर करंट गेन की तो हमने बात की, इट वेरीज बिटवीन शाबाश 50 to 400, ठीक है. लेकिन अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें, वोल्टेज गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड, अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड, देन इट विल बी शाबाश AB किसके बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज. इट विल बी इक्वल टू शाबाश output current, resistance of output divided by input current, resistance of input. Now this is beta and this is RG. Already know that beta is more than 150 to 400. RG, output resistance by input. Output resistance हम कह रहे हैं 10 kilo ohm, input resistance हम कह रहे हैं 1 kilo ohm. Therefore RG is again greater than 1, and you're seeing that your voltage gain in case of common emitter mode comes out to be around 500, which is again enormous. Thus we can use common emitter mode as a voltage amplifier as well. ठीक है. और अगर हम पावर गेन की बात करें, अगर अब हम पावर गेन की बात करें, पावर गेन, शाबाश, पावर गेन की बात करें तो it is output power by input power, which will be शाबाश, it will be beta square RG, and beta obviously greater than 1, beta square बहुत ज्यादा, and therefore we can say that power gain will be more than voltage gain, and thus common emitter mode can be used as a current amplifier, voltage amplifier, as well as a power amplifier. And thus this mode is the most commonly, most widely used configuration of the transistors. ठीक है कि नहीं? So this is the most common mode. And remember one more thing which I forgot, that in case of common base mode हमने कहा इनपुट आपने फीड किया ऐसे, yes you will have an amplified output, output voltage जो होगा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन the phase will be same, यानी कि पॉजिटिव हाफ आ गया, यहां पर भी पॉजिटिव हाफ, यहां पे नेगेटिव हाफ था, फिर यहां पर भी. लेकिन in case of common emitter mode, if you are feeding this current positive half, negative half, yes the amplified output will be somewhat like this, but this will be amplified, यानी कि आपका amplification होगा, positive half will be but converted into the negative half, and similarly negative half into positive half. That is, there is a phase difference of the input and the output by 180 degrees. ठीक है नहीं? That there is a phase shift. Now this phase shift is due to the reason, there is a reason called as Miller effect. ठीक है? Now this is again very higher concept. So I would not like you people to go there. Simply understand that in case of common emitter mode, that the phase difference between the input and the output is 180 degrees. Clear? This was all about the common emitter configuration, the most widely used configuration. Thank you so much.